Hello everyone, welcome to Blessing Institute. Logarithmic differentiation is our topic. 6 सम्स हो चुके हैं और ये 7th सम है. 6th is very important and 7th is also very important. 6th and 7th sums are very similar. See, the question is y is equal to log x raised to x plus x raised to log x. By the property of log, we know that addition in log means nothing, multiplication in log means addition of log. मतलब यहाँ पे दोनों साइड अगर सी एक चीज ये है कि इट इज वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो मैं सीधा इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता बिकॉज देयर इजंट एनी फॉर्मूला और मेथड. तो या तो ऊपर से हमें इसे नीचे उतारना है या तो लॉग लेना है. सो देयर आर टू वेज. सो लॉग वाली जो मेथड है वो आपके लिए इजी रहेगी. बाकी ई रेस टू वाली मेथड भी है, बुक में वो करके दी है, पर मैं लॉग वाली कराता हूँ इसलिए कि वो थोड़ी आपको इजी रहेगी. सो यहाँ पे सपोज करेंगे टेकिंग y इज इक्वल टू u प्लस v, y इज इक्वल टू u प्लस v, where u is equal to log x raised to x and v is equal to x raised to log x. u is equal to log x raised to x and v is equal to log x. So differentiating with respect to x, its derivative will be dy by dx equal to du by dx plus dv by dx number 2. Now we are interested in du by dx and dv by dx. So first of all we derive du by dx. Now u is equal to log x raised to x. Whenever x is in the exponent of the log x, we cannot differentiate it. So to differentiate ये x को मुझे नीचे लाना पड़ेगा. For that, taking log on both sides, so that implies log u is log of log x raised to x. Now by law of indices for log, this x will be down. So x log of log x, मतलब form is proper. Now we can differentiate it. We have formula. So differentiating with respect to x in LHS, the derivative of log Mr. X is 1 upon Mr. X into d by dx Mr. X. Getting or not? Equal to in RHS multiplication rule will be there. First as it is derivative of second log of log x plus second as it is means log of log x as it is derivative of first d by dx. X will be 1, right? So equal to x. चलो डेरिवेटिव ऑफ log Mr. X is 1 upon Mr. X into d by dx Mr. X. What is Mr. X? Log x is Mr. X. So derivative of log x is 1 upon x plus log of log x as it is. Derivative of x is 1. ये x चल बसे. So equal to 1 upon log x plus log of log x. So that implies, now multiply this u in front side, so du by dx equal to u into 1 upon log x plus log of log x. Substitute the value of u, that is log x raised to x. So equal to
log x raised to x into 1 upon log x plus log of log x is number 3, which is our du by dx. अभी देखो dv by dx लाना बाकी है, which is our du by dx. dv by dx अभी लाना बाकी है. चलो, what is dv by dx? वापस now, and v is equal to, what is v? x raised to log x. Here it is also variable raised to variable. Whenever it is variable raised to variable, we cannot differentiate it. So we will make the form, right? For that, taking log on both sides. So log v is equal to log लिया मैंने x raised to log x. Now by the law of indices for the log, this log x will be down. So equal to log x into log x. Also can write log x whole square. अब यहां से ये सब मैं आपको दे रहा हूं. dv by dx आपको लाना है. जैसे ही dv by dx आपका आ जाता है, du by dx एंड dv by dx की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, you will get the answer, right? So it is for the further practice. ये आपको करना है और कंप्लीट भी आपको करना है. So please make a note. Okay, see question number 8. Question number 8 is y is equal to sin x raised to x plus sin inverse root x. Sin inverse root x is not variable raised to variable, but sin x raised to x, that is form of variable raised to variable और function raised to function. So यहाँ पे हमें ये x को नीचे उतारना है. Due to this addition we cannot take the log, मतलब इसे हम सपोज करेंगे. तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? देखो मैं हिंट देता हूं, सम आपको करना है. रिमेंबर इट, y इज इक्वल टू u प्लस साइन इनवर्स रूट x नंबर 1, वेर u इज इक्वल टू साइन x रेज़ टू x. ये जो वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल फॉर्म था वो मैंने यहां से हटा दिया. अभी ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्म हो गया. तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं. डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so LHS will be dy by dx equal to u का डेरिवेटिव होगा du by dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स मिस्टर x इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 minus Mr. X square. What is Mr. X? Root x is Mr. X and its square will be x into d by dx Mr. X. Root x is Mr. X equal to du by dx plus 1 upon under root 1 minus x. Derivative of root x is 1 upon 2 root x, 1 upon 2 root x. This root x can be multiplied in this root. So the form will be du by dx plus 1 upon this 2. ये root x अंदर चला गया. So this form will be x minus x square. It is number 2. Now we have need of du by dx. For that यहाँ पे now what is our u? U is sin x raised to x, taking log on both sides, taking log on both sides. So it will be log u is log sin x raised to x. ये x नीचे आएगा, so we can write x log of sin x. अब यहां से आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं, यहां से आपको डिराइव करना है du by dx and substitute this du by dx in equation number 2. You will get the answer of this sum. So ये आप कर सकते हो और आपको मैं दे रहा हूं, right? Now question number 9. Question number 9 is also बढ़िया sum.
ये भी शायद मैं आपको होमवर्क में दूं तो चले, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 9, सी क्वेश्चन नंबर 9, y is equal to x raised to sin x plus sin x raised to cos x. On both the places there is variable raised to variable, and whenever variable raised to variable we have, we cannot differentiate it. तो सबसे पहले हमें ये फॉर्म मिटाना है। फॉर दैट हम सपोज करेंगे u and v. So taking y is equal to u plus v, where u is equal to x raised to sin x and v is equal to sin x raised to cos x. Now taking log on both sides, now u is equal to x raised to sin x. Whenever we have variable raised to variable, we cannot differentiate it, तो हम log लेंगे और इसे नीचे उतारेंगे. That implies log u is equal to sin x log x. Log x raised to sin x हो गया, but by property ये आ गया नीचे. Now differentiating with respect to x, that implies derivative of log Mr. x is 1 upon Mr. x into d by dx Mr. x. Mr. x is u, is equal to multiplication rule, equal to first as it is derivative of second, the derivative of log x is 1 upon x, plus second as it is derivative of sin is cos. That implies du by dx equal to u into sin x upon x plus cos x into log x. Cos x को मैंने लिखा आगे. Now substitute the value of u. It will be x raised to sin x into sin x upon x plus cos x into log x number 2. So it is our du by dx. जैसे मुझे du by dx मिला, ऐसे ही we will derive dv by dx. And v is what? V is sin x raised to cos x. Taking log on both sides, it will be log v is equal to cos x आया नीचे और ये बना log sin x. अब यहां से ये प्रोसेस मैं आपको दे रहा हूं बिकॉज यू कैन नाउ एंड यू हैव टू, राइट. सो करना ही पड़ेगा आपको, और इजी भी है, ऐसे डिफिकल्ट सम्स नहीं है. अगर प्रॉपर वे में आप जाओगे तो ऑल आर इजी. एंड सबसे टफेस्ट सम यही है, अगर ये आ गए तो समझो कि डिफरेंशिएशन अपनी चेक में, राइट. चलो, सो क्वेश्चन नंबर 10. ओके, लिख लो. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. y is x raised to x cos x plus x square plus 1 upon x square minus 1. देखो यहाँ पे वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, एंड व्हेनेवर वी हैव वेरिएबल रेज टू वेरिएबल लॉगरिथमिक इज देयर, राइट. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इट इज नॉट वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, सो इसे लॉग की जरूरत नहीं है, ये हमने सपोज किया हुआ है. सो सिर्फ और सिर्फ इससे रिक्वायरमेंट है. अब इससे सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम सपोज करेंगे कि y इज इक्वल टू u प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेर u इज इक्वल टू x रेज टू x cos x, राइट. अब यहां पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूं. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, dy by dx will be
du by dx। अब यहाँ पे डिवीजन रूल आएगा। व्हाट इज डिवीजन रूल? इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x। अभी देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में से du by dx 2x कॉमन निकल रहा है, सो 2x इंटू बचा क्या हमारे पास 2x निकल गया, x स्क्वायर माइनस 1 ड्यू टू दिस माइनस इट विल बी माइनस x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, x स्क्वायर चल बसे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 into 2x will be minus 4x, so du by dx minus 4x upon x square minus 1 square, number 2 if it is number 1. Now we are interested in du by dx. du by dx लाने के लिए you have variable raised to variable, so log will be there, right? Now u is equal to x raised to x cos x, u is equal to x raised to x cos x, taking log on both sides, u is equal to log x raised to whole this, so वो आगे आ जाएगा x cos x into log x। अब यहां से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, फर्स्ट टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड प्लस फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जो du by dx मिलेगा उससे आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, दैट विल बी योर डिजायर्ड आंसर। सो ये क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ से होमवर्क में दे रहा हूँ, इवन दो क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इट इज लिटिल बिग सम, थोड़ा बड़ा तो है पर होप कि आपको आता ही होगा, इतने सम्स करने के बाद तो ये आना ही चाहिए। सो वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज x raised to y plus y raised to x equal to 1. Due to this addition we cannot differentiate direct, तो वहां पे log लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं वो वाली मेथड भी एक बार दिखाता हूं कि log एक्सपोनेंट में जो लेने वाली सेकेंड मेथड थी, सो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, रिवीजन पर्पस, वो वाली मेथड मैं करवाता हूं आपको। देखो कैसे करेंगे। वी कैन राइट दिस वे, दैट इंप्लाइज e raised to log x raised to y base e plus e raised to log y raised to x base e, that is 1। अगर इस तरह से आप सम सॉल्व करते हो तो log दोनों साइड लिखने की जरूरत नहीं है। Now by law of indices, this y and this x will be down, so it will be e raised to x log x plus e raised to y log x plus e raised to x log y is equal to 1। तो यहां पे अब देखो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म मिट गया, मतलब ये हुआ कि नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू मिस्टर x इज e रेज टू मिस्टर x मींस y log x into d by dx मिस्टर x मींस d by dx y log x। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, प्लस सेम हियर डेरिवेटिव ऑफ e raised to Mr. x is same into d by dx Mr. x, and that is x log y, and derivative of 1 is 0, we know that।
नाउ सी e raised to y log x means this means x raised to y, तो यहां पे मैं सीधा x raised to y लिख सकता हूं. In the same way y raised to x means e raised to log y raised to x base means this, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं y raised to x, तो अब डायरेक्ट लिखेंगे in place of this term we will write x raised to y into multiplication rule, first as it is derivative of second that is 1 upon x plus second as it is log x derivative of y is dy by dx. In the same way in place of this term we will write y raised to x, so y raised to x, अब multiplication rule वापस यहाँ पर first as it is derivative of second derivative of log Mr. x is 1 upon Mr. x into d by dx Mr. x. Mr. x is y plus second as it is derivative of x is 1 equal to 0 तो है ही. Now expand both the brackets because दोनों ब्रैकेट में dy by dx है और हमें dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है. So that implies multiply inside, so it is x raised to y into y upon x plus x raised to y into log x into dy by dx. In the same way y raised to x into x upon y into dy by dx plus y raised to x into log y equal to 0. अब ये दोनों टर्म में जिसमें dy by dx कॉमन निकल रहा है, बाकी दोनों टर्म्स को मैं ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में. सो दैट इम्प्लाइज नाउ सी इन दोनों में से मैंने dy by dx कॉमन लिया, सो इट इज x raised to y into log x प्लस y raised to x. अच्छा अब यहाँ पे y raised to x upon y है ना, सो बेसिस आर सेम, रिलेशन इज डिवीजन, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट लिख सकते हो into x into dy by dx कॉमन निकल गया इक्वल टू ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल ली. ये वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूं y raised to x log y प्लस अब ये सामने, सो x raised to y. नाउ सी बेसिस आर सेम, रिलेशन इज डिवीजन, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट मतलब ये वाला x में -1 कर दिया इनटू y, ये हो गया हमारा RHS. अब इसे आप खाली डिनोमिनेटर में लिखो, दिस विल बी आंसर. ये आपको करना है, इतना करने के बाद इट विल बी योर डिजायर आंसर. कितना इजी है देखो. तो ऐसे समझे कि किस तरह से मैं अटैक करना है ये आपको पता चलना चाहिए. सो प्लीज राइट डाउन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 के बाद सारे 12 और 12 के बाद सारे ऑल आर इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है ये आपको पता होगा क्योंकि आगे हमने ये सम किए हुए कि इम्प्लिसिट में हम y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते. अगर आप चाहो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना तो नहीं बना पाओगे. तो हर एक जगह क्या होगा कि dy by dx एक से ज्यादा प्लेसेस पर आपको मिलेंगे. अब हर एक प्लेस में से dy by dx को LHS में लाके कॉमन लेके आप dy by dx डिराइव कर सकते हो. सो ऑल दीज आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस. तो मैं सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करूंगा सी. अब यहाँ पे देखो सीधा डिफरेंशिएशन करने के लिए वी हैव वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल एंड व्हेनेवर वी हैव वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल वी कैन नॉट डायरेक्ट डिफरेंशिएट इट. करेंगे क्या, ऊपर वाले को नीचे लाना पड़ेगा. फॉर दैट वी हैव वेरी इजी फॉर्म, डायरेक्ट टेकिंग log we will get the simplest form. Taking log on both sides it will be log y raised to x is equal to log x raised to y. That implies by the law of indices in log x log y is equal to y log x. कितना इजी हो गया. अब आपके लिए तो एक खिलौना हो गया भाई, आसानी से आप कर सकते हो. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x
both sides multiplication rule will be there. So first as it is derivative of second d by dx log y plus second as it is into d by dx x will be 1 is equal to same here first as it is derivative of second plus second as it is dy by dx. अब यहां से ये क्वेश्चन मैं आपको करने दे रहा हूं क्योंकि इजी फॉर्म हो गया एंड यू कैन सेम हियर भाई x रेज टू y इक्वल टू y रेज टू x के बदले हमें cos दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? वे सेम, vehicles are different, taking log on both sides, so that implies y log cos x is equal to x log cos y. Y is equal to y log cos x is equal to x log cos y. अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x सीधा यहां से करना है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म मिट गया, वही तो हमें करना है. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अब यहां से तो आपका सम जिंगो जिंगो आराम से कर सकते हो, आराम से, राइट. सेम हियर, यहां पे तो देखो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल भी नहीं है, यहां पे तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल भी नहीं है. सो आप सीधा सीधा सम कर सकते हो. देयर आर टू वेज. क्वेश्चन नंबर 15. देखो यहां पे दो वे में ये सम कर सकते हो आप. एक सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करो और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो. कैसे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. इट इज सेकेंड वे. लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. तो यहां से भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो भी चलेगा. कैसे? तो देखो इन LHS मल्टीप्लीकेशन रूल. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विल बी 1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू मिस्टर x इज e रेज टू मिस्टर x इंटू डी बाई डी एक्स मिस्टर x. अभी आपका सम हो गया. कितना इजी है देखो, यहां से मैंने होमवर्क में दे दिया. टू इजी से. क्लियर पॉइंट. सो क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 40 1 प्लस एक्स रेज टू 8. देन फाइंड डेरिवेटिव एंड हेंस फाइंड f डैश 1. f डैश 1 भी लाना है, मतलब f डैश x लाने के बाद x की प्लेस पे हमें 1 टिकाना है. तो यहाँ पे वी हैव 4 फंक्शंस इन द मल्टीप्लिकेशन. तो ये प्रोसेस हमारी बड़ी हो जाएगी कि फर्स्ट 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ प्लस फर्स्ट सेकंड फोर्थ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड प्लस फर्स्ट थर्ड फोर्थ. लंबा हो जाएगा ना. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स दैट इंप्लाइज log fx इक्वल टू, अच्छा मैंने लॉग लिया ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इन लॉग मीन्स एडिशन ऑफ लॉग. सो वी विल राइट इन दिस वे log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू 8. So differentiating with respect to x, LHS will be derivative of log Mr. x is 1 upon Mr. x into d by dx Mr. x, that will be f dash x. आप भी इसे जानते हो, राइट. इक्वल टू चलो log Mr. x का डेरिवेटिव 1 upon Mr. x into d by dx Mr. x,
that will be 1. चलो for log 1 plus x square it will be 1 upon 1 plus x square and derivative of x square will be 2x. We know this. In the same way यहाँ पे upon में आएगा 1 plus x raised to 4 और 4x raised to 4 का होगा 4x क्यूब, ये भी आप जानते हो. and in the last it will be upon में 1 plus x raised to 8 and it will be x raised to 7. अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ, ये fx बाकी है. मैं ये वाले fx को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं. सो f dash x will be fx. चलो यहां पे हम ये डिराइव कर लेते हैं कि भाई f dash 1 के लिए मुझे f1 की जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट इज f1? इक्वल टू 1 plus 1 into 1 plus 1 square is 1 into 1 plus 1 raised to 4 is 1 into 1 plus 1 raised to 8 is 1. तो क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16 आंसर आने वाला है f1. राइट. चलो fx को मैंने राइट हैंड साइड में दे दिया. fx into 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube upon 1 plus x raised to 4 plus 8x raised to 7 upon 1 plus x raised to 8. This is our f dash x. तो ये हमारा आंसर हो गया. राइट. अब fx के बदले आप ये लिखो 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x raised to 4 into 1 plus x raised to 8. Now to derive 1 f dash 1, taking 1 in place of x, it will be f1 into 1 upon 2 plus 2 upon 2 plus 4 upon 2 plus 8 upon 2. What is f1? f1 is 16. यहां पे हमने डिराइव किया हुआ है. तो 16 into 1 by 2 plus 1 plus 2 plus 4. अब ये आपका सम हो गया जिंगो. कितना इजी. क्लियर पॉइंट. तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 बचा. सो लेट बी, ये एक्सरसाइज हमारी पूरी खत्म हो जाएगी. 18th में आपको होमवर्क में देने वाला हूं. चलो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17? Question number 17 is differentiate y is equal to x square minus 5x plus 8 into x square plus 7x plus 9. Now there are different ways to differentiate it. और बुक वालों ने भी हमें यही कहा है कि भाई अलग अलग वे में आप इसे डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव निकालो. चलो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. चलो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल मैं कैसे करूंगा? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स dy by dx. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस second as it is derivative of first. खत्म. अब तो आपको आता ही है. सेकेंड वे, चलो क्या बोला है? बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पोलिनोमियल. तो इसे एक्सपांड करो. y इज इक्वल टू, चलो एक्सपांडिंग, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x रेज़ टू 4 plus 7x cube plus 9x square, then minus 5x into x square minus 5x cube, 5 7s are minus 35x square, 5 9s are minus 45x. अब 8 से मल्टीप्लाई करना है. प्लस 8x स्क्वायर plus 8 7s are 56x plus 8 9s are 72. अभी सिंप्लीफाई करके, इसे सिंप्लीफाई करके जो लाइक टर्म्स है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके
आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, इट इज आल्सो टू इजी फॉर्म. नाउ थर्ड वे, व्हाट इज थर्ड वे? बाय लॉगेरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग को इनवाइट करना है. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, LHS will be log y equal to multiplication in log will be addition of log. So log of x square minus 5x plus 8 plus log of x square plus 7x plus 9. So ये पूरा सम आपका हो गया ज़ेंगो सम. कितना इजी है. अभी एक ही क्वेश्चन बचा, दैट इज 18. चलो उसमें भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं. व्हाट इज क्वेश्चन? सी क्वेश्चन इज इफ u v and w आर फंक्शंस ऑफ x देन शो दैट, आपको शो करना है. क्या शो करना है? के 18 सम d by dx u into v into w is equal to, जो बुक में आंसर दिया है वो हमें लाना है. भाई वी हैव ऑलरेडी multiplication rule for two functions, so we can use this. By using that rule we can prove this. कैसे? देखो, equal to d by dx u into s, u v w s, s लिया मैंने, where s is equal to v into w. Now for two functions we have multiplication rule. First, as it is, derivative of second plus second as it is derivative of first. You know this. अब s की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करो. So equal to u into d by dx. What is s? v into w plus v into w into du by dx. अब यहां पे d by dx u into v में वापस मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओ, देन सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर, योर डिजायर आंसर. सो ये सम भी हमारा इजी हो गया. सो आज ये पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, नहीं पैरामेट्रिक आएगा, उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर आएगा. बराबर. सो आज इतना है. बड़े सम से प्रैक्टिस करना, 2 times इन होमवर्क, 1 time इन क्लास वर्क. ओके, सी यू, बाय बाय.